Hello students, good morning all of you. I welcome you all in the online study of Ashadeep International School. Here we have standard 6 and today we are going to learn a very interesting subject, English. So today we will continue with our chapter number 8, A Game of Chance. So today we are going to learn session number 2. So as you already know that in our previous session we completed chapter explanations. So now today in this particular session we are going to learn textual exercises. So now objective questions. So now select the most appropriate options, answers and complete the following sentences. Okay. Number 1, tradesmen from far and wide come there means कि tradesmen से वो बहुत दूर से आए थे, उसका मतलब क्या है यहाँ पे? Buyers in large numbers came there. Shopkeepers in large numbers came there. Shopkeepers from many places came there. And buyers from many places came there. So the right option is shopkeeper from many places came there. Then the village fair was held on dash Diwali, Janmashtami, Eid or Muharram. So the right answer is Eid. An old man won a dash in the disc game. Old man था, उसने disc game में कौन सा चीज़ था, कौन सी थिंग थी जो उसने won की थी? A. Table lamp, B. Clock, C. Fountain pen and D. Comb. So the right answer is clock. अपने फ्रेंड्स के साथ क्या करने गए थे? सो द ऑप्शंस आर टू स्पेंड सम टाइम, टू बाय सर्टेन थिंग्स, टू टेक सम राइड एंड टू एंजॉय सम स्नैक्स. सो द राइट ऑप्शन इज टू स्पेंड सम टाइम. देन नंबर 5, द शॉपकीपर ऑफ द डिस्क गेम ऑब्लेट टू ओल्ड मैन बाय. शॉपकीपर ने डिस्क गेम में ओल्ड मैन को क्या करके दिया? गिविंग बैक द 50 पैसे ही पेड, buying back the clock the old man had won and allowing him to take away the article marked 15 and none of the above. So the right option is buying back the clock the old man had won, कि old man ने जो clock won की थी उसको वापस से खरीद ली उसके पास से. And the writer won the second time in the disc game. writer ने disc game में second time क्या जीता था? So the options are 2 pencils, a clock, a bottle of ink and a comb. So the right option is a bottle of ink. 7, Rashid's uncle brought him. रशीद के अंकल ने उसको क्या खरीद के दिया? An umbrella, biscuits, sweets या all of the 3 given above. So the right option is all of the 3 given above, क्योंकि अम्ब्रेला भी परचेस करके दी थी, बिस्किट्स भी और स्वीट्स भी. What according to Rashid was responsible for not winning any costly thing in the disc game. डिस्क गेम में कोई भी कॉस्टली थिंग विन ना करने की वजह से रशीद किसको रिस्पॉन्सिबल मान रहा था? His bad luck, the shopkeeper's trick, his own foolishness and his champion. So the right option is his bad luck. That he did not win any costly thing. अभी रशीद की अकॉर्डिंगली तो क्या है कि उसका बैड लक की वजह से उसको कोई भी कॉस्टली थिंग नहीं मिली, लेकिन रशीद के अंकल के अकॉर्डिंगली रशीद को कोई भी कॉस्टली थिंग नहीं विन हुई. बाय लैक ऑफ स्किल, लैक ऑफ सिंसियर एफर्ट्स, बैड लक और फुलिशनेस. सो द राइट ऑप्शन इज फुलिशनेस. नंबर 10, डैश accompanied रशीद टू द ईद फेयर मीन्स रशीद के साथ ईद फेयर में कौन गया था? हिज फ्रेंड, देयर सर्वेंट, हिज अंकल्स सन एंड ऑल ऑफ दिस 3. सो द राइट ऑप्शन इज देयर सर्वेंट. 11, on the occasion of dash a fair was held in the village. Diwali, Eid, Janmashtami, Onam. So the right option is Eid. Bhaiya was
dash a household servant, a driver, a cook and uncle's friend. So भैया कौन थे? हाउस होल्ड सर्वेंट थे. रशीद्स अंकल वॉर्न्ड हिम नॉट टू. रशीद के अंकल ने क्या वार्निंग दी थी, क्या नहीं करने को बोला था? सो बाय एनीथिंग, टू गो टू फार, प्ले एनी मिस्चिफ और बोथ ए एंड बी. सो द राइट ऑप्शन इज बोथ ए एंड बी. 14. The shopkeeper of Lucky Shop was young, old, middle-aged and both A and B. So the right option is middle-aged. A boy tried his luck the second time and got. जब बॉय ने सेकेंड टाइम अपना लक ट्राई किया तो उसको क्या मिला? अ क्लॉक. रशीद गेट प्लेइंग द गेम ऑफ चांस. रशीद ने जब गेम ऑफ चांस खेला तो उसको कौन सी चीज़ें मिली? अ रिस्ट वॉच, 2 पेंसिल्स, बॉटल ऑफ इंक और बोथ बी एंड सी. सो द राइट ऑप्शन इज बोथ बी एंड सी, क्योंकि उसको क्या मिला था? 2 पेंसिल्स एंड बॉटल ऑफ इंक. रशीद वॉज ग्रेटली अपसेट बिकॉज. रशीद वो बहुत अपसेट था. वाई? He had lost all his money playing the game of chance. His uncle had forbidden him to buy anything. His uncle had asked him not to go anywhere and Bhaiya had scolded him for losing the game of chance. So the right option is he had lost all his money playing the game of chance. गेम ऑफ चांस में उसने अपने सारे पैसे लॉस्ट कर दिए. दैट्स वाई रशीद लुक्ड वॉज वेरी ग्रेट अपसेट. रशीद्स अंकल ट्राई टू कंसोल हिम बाय बाइंग हिम. रशीद के अंकल जो थे वो रशीद को अच्छा फील करवाने के लिए क्या बाय करके दिया? एन अम्ब्रेला, अ बिस्किट्स एंड स्वेट्स, अ रिस्ट वॉच एंड बोथ ए एंड बी. सो राइट ऑप्शन इज बोथ ए एंड बी. So 19. Giving the reason of his losing the game, Rashid's uncle told him that. ये रशीद की जो गेम है वो लॉस करने की वजह से उसके अंकल उसको क्या बोल रहे हैं? It was his bad luck. He lacked practice. He was tricked by the lucky shop man and nobody won the game there. So he was tricked by the lucky man shop. The lucky shop man showed his kindness to Rashid by dash, allowing him to play once more for 25. One of these three. So क्या आएगा? लकी शॉपमैन ने अपनी काइंडनेस दिखाते हुए क्या बोला था रशीद को कि वो 25 पैसे में भी एक और टाइम ये गेम खेल सकते हैं. Answer the following questions. So number 1, what was held every year in the occasion of Eid in the village of narrator? So आंसर क्या आएगा यहाँ पे? So the answer is a big fair was held every year on the occasion of Eid in the village of narrator. कि नरेटर क्या कर रहे थे यहाँ पे? नरेटर के विलेज में एवरी ईयर क्या होता था? अ बिग फेयर. What did uncle's friend want him to do? अंकल के फ्रेंड्स उससे क्या करवाना चाह रहे थे? So uncle's friends wanted him to spend some time with them. And what are the 2 things that uncle want the narrator? So uncle want the narrator not to buy anything or not to go out too far. अंकल ने नरेटर को क्या 2 चीज़ों के लिए वार्न किया था? कि कोई भी चीज़ ना खरीदे और बहुत दूर तक ना जाए. नंबर 4, डिस्क्राइब द शॉपकीपर एट द लकी शॉप. लकी शॉप का जो शॉपकीपर है उसको डिस्क्राइब करना कि वो कैसा लग रहा था. सो द आंसर इज द शॉपकीपर एट द लकी शॉप वॉज अ मिडल एज्ड मैन. ही वॉज नाइदर टू स्मार्ट नॉर टू लेजी. कि वो स्मार्ट भी नहीं था, लेजी भी नहीं था. नंबर 5, वॉट डिड द लिटिल बॉय विन. लिटिल बॉय ने क्या विन किया? सो द लिटिल बॉय
सो उसमें फर्स्ट क्या आएगा, कॉम्ब, देन अ फाउंटेन पेन, देन अ रिस्ट वॉच एंड टेबल लैम्प. हाउ डिड रशीद फील आफ्टर लूजिंग ऑल हिज मनी एट द लकी शॉप. लकी शॉप में रशीद ने अपने सारे पैसे लॉस्ट कर दिए है. दैट्स वाई वो कैसा फील कर रहा था. सो रशीद फेल्ट वेरी अनलक्की आफ्टर लूजिंग ऑल हिज मनी एट द लकी शॉप. कि रशीद है वो कैसा फील कर रहा था, वेरी अनलक्की. Then what were the people around doing when the narrator lost all his money. जब नरेटर ने अपने सारे पैसे लूज कर दिए तो उसके आजू बाजू में अराउंडली जितने भी लोग थे वो क्या कर रहे थे. So when the narrator lost all his money, the people around were laughing at his bad luck, but none showed any sympathy towards him. Who told uncle what had happened? अंकल को किसने बताया क्या हुआ उसके बारे में. सो भैया टोल्ड अंकल अबाउट वॉट हैड हैपेंड. 9. वॉट डिड अंकल डू आफ्टर हियरिंग वॉट हैड हैपेंड. जब अंकल ने सुना कि क्या हुआ तो अंकल ने उसके बाद क्या किया था. सो आफ्टर हियरिंग वॉट हैड हैपेंड, अंकल स्माइल्ड एंड पैटेड रशीद. ही टूक हिम टू अ शॉप and brought him a beautiful umbrella, biscuits and sweets and some other little gifts. What according to the uncle were the friends of shopkeeper doing? अंकल के अकॉर्डिंगली शॉपकीपर्स के जो फ्रेंड्स थे वो क्या कर रहे थे. सो अकॉर्डिंग टू अंकल द फ्रेंड्स ऑफ द शॉपकीपर के वो क्या कर रहे थे, ट्रिक्स प्ले कर रहे थे ताकि दूसरे जो लोग हैं वो उसकी ओर अट्रैक्ट हो ये गेम खेलने के लिए. हु केम टू सेल गुड्स इन द फेयर. फेयर में सामान बेचने के लिए कौन कौन आया था. सो ट्रेड्समैन फ्रॉम फार एंड वाइड केम विथ ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स टू सेल. नंबर 12. वाई डिड अंकल go away leaving Rashid with Bhaiya. So in the fair, uncle met a few of his friends who wanted him to spend some time with them. So he went away leaving Rashid with Bhaiya. कि अंकल ने रशीद को भैया के साथ क्यों छोड़ के गए. सो फेयर में अंकल को कौन मिले थे, उसके कुछ फ्रेंड्स मिले थे जो अंकल के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहते थे. दैट्स वाई अंकल ने रशीद को भैया के साथ लीव करके वो चले गए. 13. How often did the boy play the game? How many times did he win? वो जो बॉय था उसने कितनी टाइम गेम खरीदी और वो कितनी टाइम जीत गया था. सो द बॉय प्लेड द गेम 4 times. वो जो बॉय था उसने 4 times ये गेम खेला था एंड ही वॉन ऑल द 4 times. और वो चारों के चारों टाइम जीत गया था. What did the old man do with the clock? Old man ने क्लॉक के साथ क्या किया. So the old man did not want a clock. Old man को क्लॉक नहीं चाहिए थी. So the shopkeeper obliged him buying it back for 15 rupees. इसीलिए जो शॉपकीपर था उसने ओल्ड मैन से वो क्लॉक वापस खरीद ली. कितने रुपीज़ में. him by buying it back for 15 rupees. 15. How did the old man and the boy win? ओल्ड मैन और जो बॉय थे वो कैसे विन हुए होंगे. सो द ओल्ड मैन एंड द बॉय वॉन ऑल द टाइम्स दे प्लेड. क्योंकि वो जो ओल्ड मैन और बॉय थे ना वो जितनी भी टाइम खेले उतनी टाइम वो जीत गए थे. अकॉर्डिंग टू रशीद्स अंकल, रशीद के अंकल के हिसाब से दे वर फ्रेंड्स ऑफ द शॉपकीपर की वो शॉपकीपर के फ्रेंड्स होंगे. सो नाउ हियर मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज सो स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रू और फॉल्स. पुट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स. अभी हमें यहाँ पे कुछ ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं. सो हमें सेंटेंसेस रीड करके बताने कि वो ट्रू फॉल्स है वो
ट्रू है या तो फॉल्स है। ओके, सो नंबर 1, इन द ईद फेयर ऑल काइंड्स ऑफ स्मॉल एंड बिग थिंग्स कुड बी ब्रॉट। ईद फेयर में सभी काइंड की चीज़ें हम खरीद सकते थे। सो द सेंटेंस इज ट्रू। रशीद वेंट टू द फेयर विथ हिज अंकल एंड हिज मैन सर्वेंट। रशीद है वो फेयर में अपने अंकल और मैन सर्वेंट के साथ गया था। सो ये सेंटेंस भी ट्रू है। द लकी शॉप मैन वॉज स्मार्ट बट लेजी। तो ये क्या है, फॉल्स है, क्योंकि लकी शॉप मैन नाइदर स्मार्ट नॉर लेजी। ओके, द डिस्क एट द लकी शॉप हैड नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। डिस्क So now here number 5, a player had to pay 25 पैसे and select 6 discs to play with। कि प्लेयर है उसको 25 पैसे पे करने पड़ते थे 6 डिस्क से प्ले करने के लिए। सो ये सेंटेंस फॉल्स है, क्योंकि प्लेयर हैड टू पे 50 पैसे। ओके, द सेकेंड टाइम द बॉय ट्राइड एंड गॉट अ फाउंटेन पेन वर्थ 4 रुपीज़। Okay, so the sentence is false. Rashid went on playing hoping that he would win a big prize। रशीद था वो ये होप में था, इसीलिए वो अगेन एंड अगेन वापस से 50 पैसे पे करके गेम ऑफ चांस खेल रहा था, क्योंकि उसको ये होप थी कि शायद वो बिग प्राइज जीत जाएगा। सो द सेंटेंस इज ट्रू। एंड हियरिंग द रीजन ऑफ रशीद्स बीइंग अपसेट, हिज अंकल स्माइल्ड एंड पैटेड हिम। कि रशीद का अपसेट होने का रीज़न सुन के उसके अंकल ने स्माइल करके उसकी पीठ थपथपाई। सो ये सेंटेंस भी ट्रू है। ओके, नाउ वन मोर एक्सरसाइज रिलेटेड टू अ चैप्टर, रीराइट एज डायरेक्टेड। सो हमें यहाँ पे ब्रैकेट्स में जो इंस्ट्रक्शन दी है उसके अकॉर्डिंगली हमें सेंटेंसेस को चेंज करना है। सो फर्स्ट इज आई वॉज हैप्पी टू डू दैट। इसको हमें नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, टर्न इनटू नेगेटिव। ओके, सो आई वॉज नॉट अनहैप्पी टू डू दैट। ओके, आप यहाँ पे नेगेटिव में कन्वर्ट करोगे बट उसका मीनिंग है वो एज इट इज़ रहना चाहिए। सो दैट्स वाई हैप्पी का अनहैप्पी हो जाएगा और बीच में क्या लगेगा यहाँ पे, नॉट। सो आई वॉज नॉट अनहैप्पी टू डू दैट। द शॉपकीपर वॉज नाइदर ओल्ड नॉर यंग। इसको हमें और में द शॉपकीपर वॉज नॉट आइदर ओल्ड और यंग। ओके, यहाँ पे नाइदर नॉर है, सो हमने यहाँ पे और लगाना है। सो दैट्स वाई नाइदर का हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आइदर। ओके, सो द शॉपकीपर वॉज नॉट आइदर ओल्ड और यंग। एन ओल्ड मैन सिलेक्टेड 6 डिस्क। सो यहाँ पे वॉइस को चेंज करना है, मीन्स एक्टिव में से किस में कन्वर्ट करना है, पैसिव वॉइस में। सो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन सा है, 6 डिस्क। सो यहाँ पे 6 डिस्क और यहाँ पे सिलेक्टेड मीन्स वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, दैट्स वाई हम हेल्पिंग वर्ब कौन सा रखेंगे यहाँ पे, वेर। सो 6 डिस्क वेर सिलेक्टेड बाय एन ओल्ड मैन। सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की प्लेस पे, ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की प्लेस में, बीच में हेल्पिंग वर्ब लगा के पास्ट पार्टिसिपल लगाना है। ठीक है, सो 6 डिस्क वेर सिलेक्टेड बाय एन ओल्ड मैन। नाउ द बॉय वॉज ओल्डर देन रशीद। सो यहाँ पे डिग्री चेंज करनी है, ओल्डर देन ER और देन है, दैट्स वाई ये कंपैरेटिव है। सो आप सुपरलेटिव में भी कर सकते हो और यहाँ पे पॉजिटिव में भी कर सकते हो। सो यहाँ पे मैंने पॉजिटिव में कन्वर्ट किया है, रशीद वॉज नॉट सो ओल्ड एज द बॉय। ओके, आई हैड होप्स ऑफ विनिंग बिग प्राइज। सो दैट का यूज़ करना है यहाँ पे। सो आई होप्ड दैट आई वुड विन अ बिग प्राइज, दैट का यूज़ करना है, मतलब यहाँ पे 2 सेंटेंस बनाने पड़ेंगे हमें, है ना। सो 2 सेंटेंस बना के बीच में हम ऐसा कंजक्शन ऐसा दैट रख सकते हैं। सो आई होप्ड दैट आई वुड विन अ बिग प्राइज। स्टिल लक वॉज नॉट विथ मी, टर्न इनटू अफर्मेटिव। ये नेगेटिव में है, पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। सो स्टिल लक वॉज अवे और फार फ्रॉम। क्या है कि स्टिल लक वॉज अवे और फार फ्रॉम मी, कि लक अभी मेरे से बहुत दूर है।
So now here we completed our session number 2 also. So we completed this chapter with 2 sessions. In session number 1 we did explanations of chapter, and in session number 2 we did explanations of textual exercises. Okay, so now here all you have to do is that you have to write down your exercise portion in your notebook and learn it very carefully. Till that, thank you and keep learning.